UPSC MS22 paper first. Question number 41. Which of the following are useful for the treatment of hirsutism? Hirsutism mean unwanted male pattern hair growth on woman face, chest and back due to increased male hormone like testosterone or dihydrotestosterone. First, amyloride. Amyloride is innate channel inhibitor, which not useful in hirsutism. Second is estrogen. Estrogen is female hormone, so it useful in hirsutism, like oral contraceptive pills. Finasteride. Finasteride is 5-alpha reductase inhibitor, which inhibit conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Because dihydrotestosterone is more potent hormone than testosterone, it causes hair growth. So 5-alpha reductase inhibitor useful in hirsutism. Spironolactone is aldosterone antagonist, so it also useful in hirsutism. So answer is 2, 3 and 4. Answer is 2, 3 and 4. Question number 42. Which of the following is a long-acting insulin? Long-acting insulin. First, aspart. Aspart is ultra-short-acting. Glargine. Glargine is long-acting insulin. The answer is glargine is long-acting. Lispro also ultra-short. Regular insulin is short-acting insulin. Other long-acting insulin is glargine, datamir, and longest acting is degludec. Degludec is longest acting insulin. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 40. Question number 43. A 15-year girl present to the hospital, severe abdominal pain, vomiting, and cold extremities. She has tachycardia and hypotension. Lab investigation show blood glucose level 400 milligram per day. Blood pH 6.9, urine ketone +3, and serum creatinine 1.4 milligram per deciliter. तो ये सारा इंडिकेट कर रहा है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. C is promptly administer IV fluid and insulin. IV fluid or insulin there. After 4 hours, she complained of inability to lift her limb. What is the next step to be the consider her management? IV fluid and insulin देने के बाद में inability to limb her limb. So mostly likely hypokalemia. Because insulin activate sodium potassium ATPase, which cause potassium enter in cell, so plasma potassium decrease and hypokalemia occur. So treatment is potassium reflection is correct. Question number 44. Composition of oral rehydration solution WHO is. तो जो स्टैंडर्ड ORS सॉल्यूशन है इसके लिए कंपोजिशन है ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, देन पोटेशियम, देन सिट्रेट. स्टैंडर्ड ORS में ग्लूकोज होता है 1 मिलीमोल पर लीटर, सोडियम इज 90 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड इज 80, पोटेशियम इज 20 and citrate is 10. Total is 311 millimole per liter. In reduced osmolality,
new ORS. Reduced osmolality ORS is glucose content is 75, sodium also 75, chloride is 65, potassium is 20 and citrate is 10 और टोटल ऑस्मोलैरिटी इज 245। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ओआरएस के लिए बताना है तो स्टैंडर्ड ओआरएस के लिए सोडियम इज 90 मिलीमोल, पोटेशियम इज 20 मिलीमोल, क्लोराइड इज 80 मिलीमोल और एनर्जी इज 54। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is correct regarding tuberculosis meningitis? First is acid fast bacilli are infrequent seen in direct smear of CSF. Yes, infrequent seen होता है। CSF culture for MTB is gold standard for diagnosis. Yes, expert MTB and right RIF rapid immunoassay is a preferred initial diagnostic option. Yes, so answer is 1, 2, 3. Question number 46. Which one of the following is a subcutaneous preparation useful for treatment of osteoporosis? So subcutaneous preparation is denosumab. The answer is denosumab. Denosumab is an monoclonal antibody against rank ligand जो क्या करता है ओस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएट फैक्टर होता है जो कि ओस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन करवाता है। तो इसके प्रति एंटीबॉडी बन गई तो रैंक लिगेंड के प्रति एंटीबॉडी बन गई तो ओस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएट फैक्टर कम हो गया, इससे ओस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन कम हो गया एंड बोन रिजॉर्शन भी डिक्रीज हो गया क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्शन कराता है तो ओस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन कम हुआ तो बोन रिजॉर्शन भी डिक्रीज हो गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म और एक्शन होता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following are correct with regard to osteoporosis? First, it does not cause symptom until a fracture occurs. Absolutely right. Second is vertebral fracture can present with loss of height in the absence of pain. Yes. Smoking is protective. No, smoking protective नहीं होता. Fourth, it sometimes present incidentally a radiological osteopenia. Yes. The answer is 1, 2 and 4. Answer is B. Question number 48. Question number 48. Which of the following are correct with regard to ankylosing spondylitis? First, bamboo spine may be seen. Yes, bamboo. Early morning back pain is rare. No, early morning there is most common in ankylosing spondylitis. तो ये uveitis is most common extra articular feature. Yes, it is more common in male. ये भी right. तो answer is 1 and 3 and 4. Answer is 1, 3 and 4. See. Question number 49. Carpal tunnel syndrome is associated with which of the following feature? First, in carpal tunnel syndrome, median nerve compress. So first feature, pain and tingling in hand at night. Yes. Weakness of thumb abduction. Yes, क्योंकि median nerve supply करती है इसको. थर्ड इज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लेटरल हाफ ऑफ पाम. ये भी चाहिए क्योंकि लेटरल हाफ को तो मीडियन नर्व सप्लाई करती है और मीडियन हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करती है. फोर्थ इज एट्रोफी ऑफ हाइपोथिनार एमिनेंस. ये रॉन्ग हो गई. हाइपोथिनार एमिनेंस या हाइपोथिनार मसल्स सप्लाई बाय अल्नर नर्व. तो आंसर इज 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following can be used monitor disease activity in rheumatoid arthritis? Disease activity के लिए पेन. yes. visual analog scale. एक्सरे ऑफ हैंड एंड रिस्ट. नो, इसका डिजीज एक्टिविटी के मॉनिटर में एक्सरे बार बार नहीं करवाते. डेज 28 स्कोर. yes एंड ESR काउंट. yes. तो आंसर इज 1, 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 51. Which one of the following HIV associated infection is least likely with CD4 count more than 100 cell per mm3? तो इसका आंसर आएगा cerebral toxoplasmosis. cerebral toxoplasmosis जो होता है CD4 काउंट
less than 100 cell per. बाकी tuberculosis and herpes zoster occur CD4 count less than 500 cell per mmq, which more than 100. Pneumocystis jirovecii occur less than 200 cell per mmq. Question number 52. Test for graphesthesia and stereognosis are used clinically to assess. graphesthesia होता है ability to recognize symbol written on the skin. किसी के स्किन पे हम कोई सिंबल बनाते तो पहचान पाता है कि नहीं, इसके लिए ग्रेफेस्टिशिया हो गया. एंड स्टीरियोगनोसिस होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट बाय फीलिंग है साइज एंड शेप. कोई भी ऑब्जेक्ट को फील करके यदि रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो उसको स्टीरियोगनोसिस. एंड ग्राफेस्टिशिया होता है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सिंबल रिटन ऑन स्किन. कोई भी स्किन पे सिंबल रिटन कर रहे हैं तो पहचान पाता है कि नहीं, ये ग्राफेस्टिशिया. ये दोनों फीचर होते हैं इसके पेराइटल लोब में सेंसरी एसोसिएशन एरिया नंबर 5 एंड 7. तो इसमें आंसर क्या आएगा? कोर्टिकल सेंसेशन. पेराइटल कॉर्टेक्स में आंसर इज कोर्टिकल सेंसेशन. Question number 53. A blast victim is brought to the emergency. Victim is unconscious and BP is 80/50 mmHg. BP is low. Pulse is 110 and 3D. SpO2 is 70. Victim has rapid shallow breathing and sign of external blood loss are present. JVP is raised and heart sound is muffled या absent on auscultation. तो ये सारे के सारे सिम्टम है वो बता रहे पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन से हार्ट कंप्रेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्यूट कार्डियक टेम्पोनेड. हार्ट कंप्रेस हो रहा है और इसके लिए ट्राइड होता है लो बीपी, हार्ट साउंड एब्सेंट या मफल्ड हार्ट साउंड एंड डिस्टेंडेड जुगुलर वेन. ये ट्राइड होता है क्योंकि हार्ट के वाल में फ्लूइड भर गया तो हार्ट कंप्रेस हो रहा है. हार्ट कंप्रेस होने से लो बीपी, मफल हार्ट साउंड एंड डिस्टेंडेड जुगुलर वेन आ रहा है. Which of the following next single most immediately step in the management after securing airway, breathing and circulation? तो आंसर इज अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस. अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस मतलब जो कार्डिया के चारों ओर है वो फ्लूइड को रिमूव करना. क्वेश्चन नंबर 54. A 21-year-old female was brought to the emergency department with history of unknown substance ingestion. She was having vomiting, profuse diarrhea, bronchoria, excessive sweating. On examination, meiosis and muscular fasciculation was present. तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं कोलिनर्जिक सिम्टम आ रहे हैं और कोलिनर्जिक सिम्टम आ रहे हैं तो ये पॉइजनिंग होगा. ओपी पॉइजनिंग, organophosphoras poisoning. Treatment of organophosphoras poisoning anticholinergic like atropine and other is pearlidoxin is treatment. Question number 55. A young female of 22-year-old present to the medical emergency with complaint of nausea, vomiting, abdomen pain, diarrhea, convulsion along with methemoglobinemia. What is the likely diagnosis? तो डायग्नोसिस होगा कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग क्योंकि कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग में होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया, ऑक्सीडाइज कर देता है. अदर फीचर ऑफ कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग इज GIT injury, hemolysis, hepatorenal failure and shock. Let's talk about question number 56. Which of the following are the component of SOPA sequential organ failure assessment? तो SOPA के होते हैं 6 component of SOPA. First is for liver, we check serum bilirubin level. So serum bilirubin level for liver. Second is platelet count for coagulation profile.
platelet. Second, also leukocyte count is not a part of sequential organ failure assessment. Fourth is serum creatinine. Serum creatinine for renal injury. So 1, 2 and 4. Serum creatinine for renal. And other component is fourth is respiration. Respiration के लिए देखते हैं PaO2 upon FiO2, partial pressure of arterial and upon fractionate oxygen inspired oxygen. Fifth is cardiovascular में अपन mean arterial pressure या BP देखते हैं. Six is CNS सिस्टम के लिए ग्लासगो कोमा स्कोर देखते हैं. तो ये 6 कंपोनेंट होते हैं सोपा के. तो आंसर इज 1, 2 and 4. आंसर इज 1, 2 and 4. क्वेश्चन नंबर 57. प्रेशर रेटिनोपैथी में भी एसोसिएट विद प्रेशर रेटिनोपैथी एसोसिएट होता है. प्रेशर रेटिनोपैथी इज अकल्जिव माइक्रो एंजियोपैथी associated with acute pancreatitis, renal failure and autoimmune disease like SLE and dermatomyositis. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? acute pancreatitis. क्वेश्चन नंबर 58. Which of the following may constitute the characteristic trait of Zollinger-Ellison syndrome? First is severe peptic ulceration. Yes. Gastric acid hyposecretion. Hyposecretion नहीं होता है, इसमें hypersecretion होता है. Third is gastrinoma. Yes. Fourth is pancreatic neuroendocrine tumor. Yes. So answer is 1, 3, 4. Answer is 1, 3, 4. Question number 59. In a healthy young adult, what proportion of sleep time is comprised rapid eye movement sleep? So rapid eye movement sleep only 20 to 25%. And REM sleep composed remaining 70 to 75%. Question number 60. Which of the following drug can cause idiopathic intracranial hypertension? जो intracranial hypertension करवाते हैं या intracranial pressure को increase करवाते हैं, उसमें आता है टेट्रासाइक्लिन भी आता है, रेटिनोइड भी आता है, विटामिन ए भी आता है. सल्फोनेमाइड नहीं करवाता है intracranial hypertension. तो आंसर इज 1, 2, 3. आंसर इज 1, 2, 3. क्वेश्चन नंबर 61. As per the Yale and Coombs classification, farmer lungs is which type of hypersensitivity disease? So in farmer lung, the presence of specific immunoglobulins against antigen cause antigen antibody complex and complement system activation. तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये हो गया टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 62. हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर बैलेंस इज इन नेफ्रॉन अकर. तो साल्ट एंड वाटर हार्मोनल बैलेंस बाय एल्डोस्टेरोन which mainly act collecting duct. तो आंसर इज collecting duct. क्वेश्चन नंबर 63. Which one of the following parameter suggest pre-renal azotemia? Azotemia mean urea in blood increase. Blood में यूरिया इंक्रीज हो गया. और pre-renal cause like dehydration, shock and other cause. तो इसमें कौन सी कास्ट दिखाई देती है? फर्स्ट रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट. रेनल ट्यूबुलर एपिथेलियल कास्ट होती है रेनल डिजीज में होती है, ना कि प्री-रेनल में. रेनल डिजीज लाइक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में होती है. सेकंड इज ग्रोमुलर कास्ट. ग्रोमुलर नहीं है, ग्रेनुलर कास्ट है. ग्रेनुलर कास्ट होती है जो ट्यूबुलो इंटरेस्टियल डिजीज में होती है. थर्ड इज हाइलिन कास्ट इन यूरिन सेडिमेंट. यस, हाइलिन कास्ट नॉर्मल में दिखाई देती है, तो ये प्री-रीनल कोज में कौन सा दिखाई देती है? हाइलिन कास्ट. तो आंसर इज सी. फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम मोर देन 1%. नो. लेस देन 1%. आंसर इज फेना. उसमें लेस देन 1% होता है प्री-रेनल कोज में. तो प्री-रेनल कोज में हाइलिन कास्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 64. मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज.
तो ये आंसर इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो आंसर इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्वेश्चन नंबर 65, which of the following statement regarding contrast induced nephrotoxicity are correct? तो contrast induced nephropathy किसको बोलते हैं? रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ acute kidney injury after administer of radio contrast media। एक्यूट किडनी इंजरी का पता कैसे लगेंगे? सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज या इक्वल टू 0.5 और 25% ऑफ बेसलाइन वैल्यू। जनरली हैपन 48 to 70 hour period in absence of alternative cause of acute kidney injury। कोई अल्टरनेटिव कोज नहीं होना चाहिए, क्या बोलेंगे अपन इसको? कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो फर्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटिस इज ए रिस्क फैक्टर। यस, डायबिटीज रिस्क फैक्टर होता है। एन एसिटाइलसिस्टीन कैन फुल्ली रिवर्स द रीनल इंजरी। नो, एन एसिटाइलसिस्टीन के बारे में अभी इनकंसिस्टेंट डाटा है। हाइड्रेशन इज बेनिफिशियल। यस, नेसेसरी है, बेनिफिशियल है। ओमिट मेटफॉर्मिन इफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी ओकर। यस, मेटफॉर्मिन नहीं लेते। तो आंसर इज 1, 3 and 4। आंसर इज डी। क्वेश्चन 66, which component of auto-regulation of glomerular filtration act on efferent arterioles? First is autonomous myogenic reflex, ये होता है afferent arterioles पे एक्ट करता है। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक, ये भी afferent arteriole पे एक्ट करता है। थर्ड इज एंजियोटेंसिन सेकंड मीडिएटेड वासा कंस्ट्रिक्शन। यस, ये करता है efferent arteriole पे एक्ट। ये अपना ग्लोमेरुलस, इसमें ये अफरेंट आर्टेरियल और ये हो गया इफरेंट आर्टेरियल। ये हो गया अफरेंट और ये इफरेंट। तो इफरेंट पे कौन एक्ट करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड मीडिएटेड वासा कंस्ट्रिक्शन। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? वाइड रेंज प्रोटीनूरिया होता है, प्रोटीनूरिया। सो इंक्रीज लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस। यस, प्रोटीन की डेफिशिएंसी लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड इज लो सीरम ग्लोबुलिन लेवल। यस, प्रोटीन इन यूरिन कोज डिक्रीज ग्लोबुलिन इन सीरम। इंक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन लेवल। यस, जो कि साल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवाएगा सीरम और उससे एडिमा आएगी इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। फोर्थ इज इंक्रीज सीरम एंटीथ्रोम्बिन थर्ड लेवल। नो, सीरम एंटीथ्रोम्बिन थर्ड लेवल डिक्रीज होता है क्योंकि ये यूरिन में पास हो जाता है। तो आंसर इज 1, 2 and 3। आंसर इज 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 68, सिकल सेल सिंड्रोम आर caused by a mutation in the beta globulin gene, which one of the following correctly describe the change? तो इसमें क्या होता है? 6 अमीनो एसिड पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। यस, राइट, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स? तो रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स हाई किसमें होता है? एक होता है हिमोलाइसिस में या ब्लड लॉस। यदि ब्लड लॉस हो रहा है या हिमोलाइसिस हो रहा है तो रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होगा। फर्स्ट इज सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में हिमोलाइसिस होने के कारण रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें कुछ नहीं होता। G6PD डेफिशिएंसी, इसमें क्या होता है? हिमोलाइसिस होता है, तो इसके कारण रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स इंक्रीज होगा। ब्लड लॉस में भी इंक्रीज होगा। तो आंसर इज 1, 3 and 4। आंसर इज 1, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स माइलोमा? रिलैप्स माइलोमा के लिए, तो इसके लिए आंसर है लेनालिडोमाइड, बोटेजुमाब एंड डेक्सामेथासोन। क्वेश्चन नंबर 71, which of the following can be used in the initial management of heparin induced thrombocytopenia? heparin induced thrombocytopenia के लिए होंडापेरिनेक्स देते हैं। रिवारोक्साबेन होता है
फैक्टर 10A इनहिबिटर, तो इसमें एक्स आ गया ना, तो ये फैक्टर 10A इनहिबिटर है। लेपिरुडिन होता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो ये भी देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये देते हैं। वारफेरिन नहीं देते, तो हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में अपन फोंडापेरिन एक्स, फैक्टर 10 इनहिबिटर एंड डीटीआई डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर देते हैं। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 72, रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन लेवल विल बी रेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्रोटोपोरफायरिन प्लस प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन, ये मिलके बनाते हैं हीम। हीम सिंथेसिस करते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी हो गई, आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो हीम सिंथेसिस भी कम होगा। तो प्रोटोपायरिन क्या हो जाएगा, अनयूज रहेगा। तो अनयूज रहेगा तो प्रोटोपायरिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा किसमें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो एब्सोल्यूट आयरन डेफिशिएंसी में भी इंक्रीज हो जाएगा, रिलेटिव में भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग क्या करता है, लीड पॉइजनिंग करता है, इनहिबिट करता है एडिशन ऑफ आयरन एंड प्रोटोपोरफायरिन। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन को एडिशन को इनहिबिट करता है, तो ये एडिशन इनहिबिट हो गया तो इस तो भी हीम सिंथेसिस डिक्रीज होगा, और हीम सिंथेसिस डिक्रीज होगा तो प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज होगा, तो लीड पॉइजनिंग में भी इंक्रीज होगा। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 73, नेगेटिव आयरन बैलेंस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ progression to iron deficiency anemia. Which of the following laboratory investigation will be found deranged in this stage, thereby pointing to early iron depletion? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है आयरन डिप्लेशन, आयरन डिप्लेशन या नेगेटिव आयरन बैलेंस। सेकेंड स्टेज होती है इसकी आयरन डेफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस, और थर्ड स्टेज होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रॉपर। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेगेटिव आयरन, इसमें मेरो आयरन, बोन मेरो आयरन डिक्रीज हो जाता है, सीरम फेरिटिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये 3 चीजें होना चाहिए, मेरो आयरन डिक्रीज होना, सीरम फेरिटिन डिक्रीज होना, टोटल आयरन। इन सेकेंड स्टेज में फर्स्ट 3 तो है ही, फर्स्ट वाली प्लस इसके साथ साथ सेचुरेशन लेवल डिक्रीज होना चालू हो जाता है, एंड डिक्रीज मेरो सिडेरोब्लास्ट एंड आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन लेवल इंक्रीज। ये सेकंड स्टेज में होता है। और थर्ड आयरन डेफिशिएंसी स्टेज में फर्स्ट एंड सेकंड प्लस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जैसे माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ये थर्ड स्टेज में आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा नेगेटिव आयरन बैलेंस या फर्स्ट स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में आता है, फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सा डिरेंज होता है, फर्स्ट बोन मेरो आयरन स्टोर यस, परसेंट से ट्रांसफेरिन सेचुरेशन लेवल होता है सेकंड स्टेज में, आयरन डेफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस सेचुरेशन सेकंड स्टेज में। फर्स्ट सीरम फेरिटिन यस, ये भी फर्स्ट स्टेज में, एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी फर्स्ट स्टेज में होता है। आंसर इज 1, 3 एंड 4, 73 का सी। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following drug carry a definite risk of causing clinical hemolysis in person suffering from G6PD deficiency? तो इसके लिए ड्रग कौन कौन सी है, प्रीमाकुरिन भी, डेप्सोन भी हेमोलाइसिस करवाता है, कोट्राइमोक्साजोल भी करवाता है, और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन भी, ये सारे हेमोलाइसिस को बढ़ाते हैं इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट में। तो आंसर इज 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 75, a 40-year-old male present with complaint of generalized weakness, weight loss, abdomen discomfort and decreased appetite. On examination,
स्प्लेनोमेगली प्रेजेंट, मैसिव स्प्लेनोमेगली। तो मैसिव स्प्लेनोमेगली होता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में भी होता है और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी होता है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड द हीमोग्लोबिन वाज 7 ग्राम पर डेसीलीटर एंड प्लेटलेट काउंट 8 लाख पर क्यूबिक mm, WBC is 90 mm। तो प्लेटलेट एंड WBC इंक्रीज बोथ। तो ये कौन सी सीरीज है? माइलोइड सीरीज, माइलोइड सीरीज ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसका आंसर आएगा क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो आंसर इज क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया नहीं हो रही, लिम्फोसाइटिक सीरीज इंक्रीज नहीं हो रही थी, लिम्फोसाइट इंक्रीज स्पेशली नहीं बता रखा इसमें, क्योंकि डब्ल्यू प्लेटलेट भी माइलोइड से ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज टू मेलाइटस के लिए क्या होता है? ओबेसिटी रिस्क फैक्टर होता है ना। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, यस रिस्क फैक्टर। अंडरवेट रिस्क फैक्टर नहीं है, यहाँ पे बताया ना, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है या ओवरवेट रिस्क फैक्टर होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी भी रिस्क फैक्टर है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम भी रिस्क फैक्टर है। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following statement with regard to gestational diabetes mellitus are correct? Most women revert to normal glucose tolerance postpartum years। जो gestational diabetes mellitus होता है वो होता है 20 मतलब सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, और जो कि बाद में नॉर्मल हो जाता है पोस्टमार्टम के बाद में। चिल्ड्रन बोर्न टू GDM मदर हैव नो इंक्रीज रिस्क फॉर डायबिटीज मेलाइटस लेटर इन लाइफ। रॉन्ग। जो बच्चे होते हैं GDM मदर के वो भी रिस्क फैक्टर होंगे या रिस्की होंगे फॉर डायबिटीज मेलाइटस के लिए। ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, एब्सोल्युटली राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी, यस। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4, आंसर इज सी। 77 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 78, thyroid function test report show the following result: TSH undetectable या very low and T3 and T4 is raised। which one of the following will be the most likely interpretation on the basis of the। तो T3 और T4 हाइपोथायरॉयडिज्म को बता रहा है और TSH अनडिटेक्टेबल मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म नेगेटिव के द्वारा TSH लेवल डिक्रीज हो जाएगा T3। तो आंसर इज प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 79, which of the following biochemical abnormality in seen severe hypertriglyceridemia। तो आंसर इज स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया। तो आंसर इज स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया। स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है? स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया होता है जिसमें इसको बोलते हैं फॉल्स हाइपोनेट्रेमिया। ब्लड में सोडियम की कमी नहीं होती परंतु लैब रिपोर्ट बताता है कि सोडियम की कमी है। नॉर्मली क्या होता है? ये हो गया सेल वॉल्यूम और इसमें हो गया, ये हो गया प्लाज्मा वॉल्यूम, प्लाज्मा वाटर, और ये थोड़ा सा हो गया इसमें प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड, ये होता है नॉर्मल। परंतु सेल वॉल्यूम हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया में क्या होता है? ये प्रोटीन और लिपिड कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज, प्लाज्मा वाटर डिक्रीज, ये सॉइल वॉल्यूम। तो ये लिपिड कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो लैब मेजरमेंट करता है सोडियम अपॉन प्लाज्मा वॉल्यूम, सोडियम अपॉन प्लाज्मा। तो इस ज्यादातर सोडियम क्या होता है? प्लाज्मा वाटर में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा वाटर हो गया डिक्रीज, यहाँ पे प्लाज्मा, परंतु अपन लैब में पूरा का पूरा प्लाज्मा वॉल्यूम लेते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम लेते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम तो है कम और प्लाज्मा वॉल्यूम है ज्यादा, प्लाज्मा वॉल्यूम है ज्यादा। तो लैब मेजरमेंट में क्या होगा? सोडियम की कंसंट्रेशन कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लिपिड इंक्रीज हो गया। ऐसे ही जहां पे भी प्रोटीन इंक्रीज हो रहा है, जैसे मल्टीपल माइलोमा या इंट्रावेनस हीमोग्लोबिन थेरेपी दे रहे हैं, वहां पे भी स्यूडो हाइपोनेट्रेमिया आएगा।
Which of the following statement are correct about treatment with vitamin D supplementation? First, serum calcium level improve earlier than serum parathyroid level. या serum calcium level फर्स्टली improve होता है, फिर उसके नेगेटिव फीडबैक से serum parathyroid भी नॉर्मल हो जाता है. क्वेश्चन सेकंड, point number 2, patient should be closely observed with serial vitamin D level in blood as vitamin D toxicity occur frequently. Wrong, vitamin D toxicity frequently नहीं होती. Third is vitamin D supplementation should always be conjugation with calcium supplementation. Yes, calcium supplementation के साथ देते हैं. Nephrolithiasis is common non complication. Yes, nephrolithiasis is non complication answer. So answer is 1, 3 and 4. Answer is 1, 3 and 4 C.